ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا چرچا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ذکر اور شکر تمہارے لیے خیر ہوگا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو دولتیں عطا فرمائی ہیں، اس پر شکر کرنا اور اللہ کی تعریف بیان کرنا یہ بہت ہی برکت اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے ضرور راضی ہوگا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت کہ اللہ نے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا، اور ہمیں اچھائی کا اپنے حبیب کے ذریعے حکم دیا، برائی سے روکا، اور یہ کہ اللہ نے ایسا محبوب عطا فرمایا، ایسا حبیب عطا فرمایا کہ جو تمام نبیوں کا نبی، تمام رسولوں کا رسول ہو۔ اور اس سے بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہمارے آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے حدیث رسول عطا فرمائی، اللہ نے اپنا مقدس کلام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، حبیب کے ذریعے ایسا رشد و ہدایت والا کلام پاک عطا فرمایا کہ اس قرآن مقدسہ کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، ہر خشک و تر کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر۔ اور اگر کوئی مسئلہ قرآن پاک سے حل نہ ہوتا تو اللہ نے ہمیں حدیث رسول عطا فرمائی ہے کہ ہم حدیث کے ذریعے، پھر زمانہ بدلتا گیا، اقوال زرین، امہ مجتہدین، بزرگان دین کے ذریعے ہم تک اچھا پیغام، رشد و ہدایت ہم کو آپ کو ملتا رہا۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی حبیب کی امت میں پیدا کر کے تمام تر بری باتوں سے دور رکھا، اور دنیا کی ہر بلا سے ہمیں بچا کر رکھا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا ذکر کریں، اس کے ذکر کی محفلیں سجائیں، اس کے نام کی مالا جپیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا حبیب عطا فرمایا جو تمام رسولوں کا رسول ہو، تمام نبیوں کا نبی ہو، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تو بہت پہلے ہی پیدا فرما رکھا تھا۔
تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے مکانوں پر اللہ کا ذکر کریں، اس کے رسول کا ذکر کریں۔ یہ ذکر کرنا اللہ کی نعمتوں کا چرچا اور اس کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے مکان پر پہنچتی ہیں تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ میرا بچہ بڑا حسین و جمیل ہے، میرا بچہ بڑا بابرکت ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، اے حلیمہ سعدیہ سنو، چونکہ کچھ عورتیں بنو سعد کی جب آئی تھیں تو یتیم دیکھ کر کے، یتیم سن کر کے عورتوں نے خدمت کے لیے انکار کر دیا، یہ ان کے نصیب کی بات تھی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی خدمت کو گوارا ہی نہیں کیا، یہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ان کے نصیب میں تھی کہ وہ حضور کی خدمت کریں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں، اے آمنہ سنو، جب میرے بیٹی کی ولادت ہوئی تو میں نے اپنے گھر کے صحن ہی سے جو ہے کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھ لیے۔ اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسا نور ظاہر ہوا، ایک ایسی روشنی نکلی جس کی وجہ سے ملک شام کے جو محلات تھے وہ مجھے نظر آ گئے۔ اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ جب میرے بیٹی کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کے دادا جان خانہ کعبہ کی طرف لے گئے۔ جب میرا محمد خانہ کعبہ کے قریب گیا تو خانہ کعبہ میرے محمد کی جانب جھک گیا اور جھک کے اس نے سلام کیا، اے حلیمہ سعدیہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ تعریف بیان کرتی ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی امی جان کہتی ہیں، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ اور سنو، پھر اچانک کیا ہوا کہ میرا بیٹا میری گود میں ہے، اچانک میرا بیٹا میری گود سے غائب ہو جاتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا میرے بچے کو لے کر کے جاتا ہے اور پھر جو ہے میری نگاہوں کے سامنے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے، یہ امام الانبیاء ہیں، ان کو زمین و آسمان کی سیر کرا دو، یہ آخری نبی ہیں، ان کو جو ہے مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو پوری دنیا کی سیر کرا دو۔ اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا تو جس طرح سے دوسری عورتوں کو دقت ہوتی ہے، دوسری عورتوں کو پیٹ میں بوجھ ہو محسوس ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم ان تمام باتوں سے باز رہے، دور رہے۔ میرے بچہ جب میرے پیٹ میں آیا تو مجھے کسی طرح کی پریشانی لاحق نہیں ہوئی جس طرح سے دوسری عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان حضور کی تعریف بیان کرتی جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پہلے سوچتی تھیں یہ یتیم بچہ ہے، اس کی پرورش کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، چونکہ بنو سعد کی عورتیں جتنی بھی مکہ مکرمہ کے اندر آئی تھیں، ایک دستور تھا بنو سعد قلب کی عورتوں کا کہ جو بھی عورتیں مکہ مکرمہ آتی بچوں کو حاصل کرتی، ان کی خدمت کرتی، خدمت کے سبب ان کو نذرانہ دیا جاتا، 2.5 سال 3 سال دودھ پلاتی، اس وجہ سے انہیں ڈھیر سارا نذرانہ ملتا، بڑی دولتوں سے وہ نواز دی جاتی، غریب خاندان کی خواتینیں تھیں، اس وجہ سے ساری عورتیں آتی مکہ مکرمہ اور بچوں کو تلاش کرتی، بچوں کو حاصل کرتی۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ اس طرح سے تعریف بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، جب میرا بیٹا 1 مہینے کا ہو گیا تو ایک بلند قد والے آدمی نے آ کے مجھے خوشخبری دی، اے
आमना तैयबा ताहिरा सुन, तेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह का महबूब है, तमाम नबियों का सरदार है। इस तरह से कभी शीश अलैहिस्सलाम आकर मुबारकबादी देते हैं, कभी हूद अलैहिस्सलाम आकर मुबारकबादी देते हैं, कभी मूसा अलैहिस्सलाम आकर मुबारकबादी देते हैं। इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम इन 9 महीनों में आते रहे, और जिस रात मेरे बेटी की विलादत हुई उस रात जन्नत की हूरें आईं और उन्होंने खुशखबरी दी और वो दाई बन के आईं। ऐ हलीमा सादिया सुनो, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि इसकी बड़ी शान होगी। अभी तो ये छोटा है, लेकिन एक ज़माना आएगा पूरा अरब अजम इसके कदमों के नीचे झुक जाएगा। अल्लाह अकबर। इस तरह से जब हज़रत आमना तैयबा ताहिरा ने अपने बेटी की तारीफ बयान करी तो हज़रत हलीमा सादिया के दिल में मोहब्बत बढ़ती गई। सुभान अल्लाह। इस तरह से अज़मत बढ़ती गई। और उसके बाद जब हज़रत हलीमा सादिया ने देखा तो हुजूर हरे कपड़े में, हरा कपड़ा मोटा रेशमी कपड़े में मलबूस थे, और आपके मुबारक बदन से हल्की हल्की कस्तूरी के मिस्र खुशबू की फुआएं फूट रही थी। अल्लाह अकबर। जब हज़रत हलीमा सादिया ने चेहरा देखा तो अल्लाह अकबर देख के दंग रह गई और पुकार उठी कि मैंने ऐसा नूरानी बच्चा आज तक नहीं देखा। अरे इसकी सुभान अल्लाह, इसकी आंखें तो देखो, अल्लाह अकबर, इसकी पेशानी तो देखो, इस बच्चे की अबरू तो देखो, इस बच्चे के बाल तो देखो। मेरे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतने हसीन और जमील थे। हज़रत जो है हलीमा सादिया देख के फरिश्ता हो गई, और देखने के बाद क्या करती हैं कि हुजूर की आंखें बंद हैं, हुजूर सो रहे हैं। हज़रत हलीमा सादिया ने फर्क मोहब्बत में अपना सीना हुजूर के मुबारक सीने पर, अपना हाथ मुबारक सीने पर रखा तो हुजूर मुस्कराए, और उसके बाद आंखें खोली तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं हुजूर की आंखों से एक ऐसा नूर निकला जो आसमान की जानिब फैल गया। और उसके बाद मैंने जो है हज़रत हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले लिया। लेने के बाद मैंने दाहिने जो है पिस्तान का दूध आपके मुंह मुबारक में दाखिल कर दिया, तो अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि दूध ऐसा निकला, हालांकि खुश्क साली की वजह से, तंगी की वजह से मेरे पिस्तानों का दूध खुश्क हो गया था, लेकिन जैसे ही मोहम्मद के लबे मुबारक मेरे पिस्तान पे लगे, अल्लाह ने ऐसी दूध की नहरें जमा दी। यूँ इससे पहले मेरा खुद का बेटा और बेटियाँ भूख की वजह से बिलखती थी, रात भर सो नहीं पाती थी, और मैं भी जागती थी। लेकिन आज ये करम ऐसा हो गया कि ऐ आमना तैयबा ताहिरा सुनो, आपका बच्चा बड़ा बाबरकत है, बड़ा नूरानी है। उसके बाद दूध नोश किया, दूध नोश करने के बाद दाहिना पिस्तान हुजूर को दिया तो हुजूर ने इनकार कर दिया। और दूध की रसात जितने भी साल थे, 3 साल या 2.5 साल, वो यही अमल अपनाते रहे, दाहिने पिस्तान का दूध पीते रहे। बताना ये था कि मैं दुनिया में आया हूँ तो अदल इंसाफ कायम करने के लिए आया हूँ। हुजूर को मालूम था मेरा एक रसाई भाई है जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसका भी हिस्सा है मेरी रसाई माँ के साथ। इसलिए है हुजूर ने सारी ज़िंदगी, यानी जो रसात की मुद्दत थी 2.5 साल या 3 साल, आप दाहिने पिस्तान का दूध पीते रहे। आपने बाएं पिस्तान का कभी दूध नोश नहीं फरमाया, इसलिए कि हम तो अदल इंसाफ कायम करने आए हैं। अगर हम ही अदल इंसाफ काम नहीं करेंगे तो फिर आलम का क्या होगा। हज़रात मोहतरम, ये बचपन का ज़माना है हुजूर का, अभी शेर खार हैं, लेकिन अदल इंसाफ हुजूर ने बचपन ही में कायम कर दिया। और जो तो जितनी भी रसात की मुद्दत थी 2.5 साल या 3 साल, सारी ज़िंदगी इसी तरह से दाहिने पिस्तान का दूध पीते रहे। और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जब मौजज़ा देखा तो हज़रत हलीमा सादिया जाती हैं अपने शौहर के पास, कहती हैं बच्चा तो बड़ा बाबरकत है, नूरानी बच्चा है, ऐसा है खाली जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्यों ना हो इसी यतीम बच्चों को लेते जाएं, और बड़ा बाबरकत बच्चा है। उसके बाद हज़रत हलीमा सादिया जो है कहती हैं कि ऐ मेरे शौहरे नामदार, जरा ऊँटनी का दूध तो निकाल कर देखो। जब ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भरे हुए थे, और दूध निकाला तो खूब दूध निकला, कटोरे पर कटोरा भर गया। हज़रत हलीमा सादिया कहते हैं मैंने पिया, और उसके बाद मेरे शौहर ने पिया। रात सुकून से गुजरी। 3 दिन तक हज़रत हलीमा सादिया मक्का मुकर्रमा के अंदर रहीं और ये अज़मतें देखती रहीं। और उनके शौहर ने कहा ऐ हलीमा सादिया खामोश रहो, मेरे इल्म में है, मैंने देखा है कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है, यानी कई रोज़ से मैं देख रहा हूँ ये
यहूद व नसारा का खाना पानी रुक गया है, उन्हें जिस बात का यकीन था वो बात हो गई है। और सुनो, हुजूर की विलादत जिस साल हुई, जिस महीने में हुजूर की विलादत हुई, तो उस साल दुनिया कायनात के अंदर बेटे ही बेटे पैदा हुए। अल्लाह ने अपनी हबीब की आमद पर यही नहीं, सारी औरतों को बेटे अता फरमाए, और अल्लाह ने अपनी हबीब की आमद पर यही नहीं बल्कि आसमान को शामियाना बना दिया था। हज़रत हलीमा सादिया से कहती हैं, हज़रत आमना तैयबा ताहिरा, ए हलीमा सुनो, मेरे बच्चे की जब विलादत हुई तो अल्लाह ने आसमान से सितारों को करीब कर दिया। चांदो सूरज मेरे घर के सहन में थे, मुझे ऐसा मालूम होता था कि कहीं टूट के गिर ना जाएं। ऐ हलीमा सादिया, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत आमना तैयबा ताहिरा अपनी बेटी की तारीफ बयान करते हैं। उसके बाद हज़रत मोहतरम क्या होता है, 3 दिन तक हज़रत हलीमा सादिया क़याम करती हैं। 3 दिन जब गुजर जाते हैं तो हज़रत हलीमा इजाज़त लेती हैं कि अब मुझे जाने की इजाज़त दो, इसलिए कि जितनी भी औरतें हैं वो सब बनु साद की औरतें जो हैं अपनी बस्ती की जानिब जा रही हैं, तो बहरहाल मुझे भी इजाज़त दो, मैं भी जाऊँ। जब हज़रत हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया ने अपनी गोद में उठाया और जब नाका पर सवार हुई, ऊँटनी पर सवार हुई हज़रात मोहतरम, तो उसने 3 सजदे किए, इसलिए कि ऊँटनी जानती थी कि अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई है। जब बनु साद की औरतों के साथ यही ऊँटनी आई थी तो रास्ते में बार बार गिर रही थी और सत्ताकर आ रही थी, उसके अंदर कमज़ोरी थी, पहले साली की वजह से उसे घास चारा नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से कमज़ोर थी, उसे दोबारा ज़िंदगी मिल जाती है जब पुष्प पर सवार हो। जब हज़रत हुजूर पुष्प पर सवार होते हैं, हज़रत हलीमा सादिया लेकर के पुष्प पर बैठती हैं, तो वही ऊँटनी 3 सजदे करती है। ऊँटनी अपने ज़ुबान हाल से कहती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज तूने मुझे अपने हबीब को मेरे पुष्प पर सवार करके मुझे दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई है, दोबारा तवानाई ताकत अता फरमाई है। और उसके बाद आसमान की जानिब देखती है, वो शुक्र अदा करती है, एक जानवर हो के हुजूर की तारीफ बयान करती है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद चलती है, उसकी रफ्तार बड़ा निराली थी। ऊँटनी पहले आई थी तो कमज़ोर थी, लेकिन अब ऊँटनी की रफ्तार बड़ा तेज़ है। बनु साद की जितनी भी औरतें थीं वो आगे निकल गईं, हज़रत हलीमा सादिया थी, लेकिन जब ऊँटनी अब चली है तो उसकी रफ्तार तमाम ऊँटनियों से बढ़ गई है। अब जितनी भी औरतें थीं बनु साद की कहती हैं, ए हलीमा सादिया, क्या तूने सवारी बदल दी है? इसकी तो शान बड़ा बुलंद है और इसका चलना तो देखो बड़ी तेज़ चल रही है, इसके अंदर बड़ी ताकत आ गई है, बड़ी कुव्वत आ गई है। तो हलीमा सादिया कहती हैं, सुनो और तो सुनो, मैंने कोई सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जो बैठने वाला है वो सवार बदल गया है। ये बैठने वाला जो है वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा, ये नूरानी बच्चा मोहम्मद जिसका नाम है, इसकी अज़मतें हैं, इसकी बरकतें हैं कि अल्लाह ने ऊँटनी के अंदर ताकत और कुव्वत रख दी है। और हज़रात मोहतरम, और फिर औरतों ने कहा, चलो ये तो बात मानता हूँ कि इसके बैठने की बरकत है, क्या तुम मक्का मुकर्रमा से आई हो, क्या तुमने इतर लगाया है, कोई खुशबू लगाई है, कोई कस्तूरी लगाई है? जिस गली से तुम जिस रास्ते से गुजर जाती हो वो रास्ता महक जाता है। इसलिए कि हलीमा सादिया पहले पीछे थी, जब ऊँटनी अब चलती है हुजूर को लेकर, अब सबसे आगे आगे होती है, तो आगे आगे होगी तो खुशबू ज़रूर पीछे वाले सूंघेंगे, उसको जो है उसका फ़ायदा उठाएंगे। जब औरतों ने देखा, ए हलीमा ये तो बताओ इसके अंदर खुशबू कहाँ से आ रही, क्या तुमने कोई इत्र लगा लिया है, तुमने कोई कस्तूरी लगा ली है? तो कहा, नहीं नहीं, अरे औरतों सुनो, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, बल्कि यही बच्चा मोहम्मद जो बैठा है, इसी के बदन से ऐसी खुशबू की फुआएं फूट रही हैं जैसे कस्तूरी के मिस्र, और कस्तूरी में ऐसी खुशबू कहाँ होगी जो मेरे हुजूर के पसीने और मेरे हुजूर के बदन में थी खुशबू। हज़रात मोहतरम, सुभान अल्लाह तो बनता है, सुभान अल्लाह कह दिए, हुजूर की तारीफ बयान हो रही है, मेरे हुजूर के आका अलैहिस्सलाम की तारीफ जहाँ जहाँ जिक्र हो वहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और अल्लाह खुद फरमाता है, अगर तुम मुझे अपना महबूब बनाना चाहते हो, मुझे अपना जो है अपने कुर्ब में लाना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरे हबीब से मोहब्बत करना होगी, मेरे हबीब का चर्चा करना होगा। और जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उन सब से इस बात का अहद ले लिया, ए आदम तुम जाते रहे हो, ए शीश तुम जाते रहे हो, ए मूसा तुम जाते रहे हो, तुम अपने ज़िक्र में मेरे ज़िक्र में मेरे हबीब का ज़िक्र ज़रूर शामिल कर लेना। और जितने भी नबी आए आखिरी नबी का ज़िक्र करते रहे, तज़किरा करते रहे और हुजूर के बारे में बताते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने बताया, सुनो मेरे बाद आने वाला जो नबी होगा उसका नाम मोहम्मद होगा, अहमद होगा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया। हज़रत मोहतरम, उसके बाद क्या होता है, हज़रत हलीमा सादिया लेकर के हुजूर को चलती हैं। अब 12 पहाड़ियों का सामना होता है, रास्ते में 12 पहाड़ी जब पड़ती हैं। अब जिस पहाड़ी पर आप चलती हैं तो उसके अंदर जितने भी
درخت ہیں, چرند پرند ہیں, راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر سوکھے درخت کے پاس سے اونٹنی گزرتی تو ہرا بھرا ہو جاتا, اور اگر سایہ اس جانب ہوتا, اونٹنی گزرتی, سایہ اس جانب ہو جاتا. اور تمام پرندے جو ہیں ٹکٹکی نگاہوں سے جو ہے ٹیلے پر سے دیکھ رہے ہیں. چلو چلو امام الانبیاء ان کی زیارت کر لو, چلو چلو آخری نبی آئے ان کی زیارت کر لو. اس لیے کہ ایک جانور دوسرے جانور کو اس بات کی خوشخبری دے رہا تھا, ارے چلو چلو امام الانبیاء آئے ہیں, رحمت للعالمین ہیں, ان کی زیارت کرو. یہ جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر کہہ رہے تھے کہ چلو چلو امام الانبیاء ان کی زیارت کرو. سارے ٹیلوں سے حضور کا مشاہدہ کر رہے ہیں. سارے جانور حضرات محترم بنو سعد کے ساری عورتوں نے یہ معجزہ حضور کا دیکھا کہ حضور جس ٹیلے پہ سے گزرتے تمام جانور سائڈ سے کھڑے ہوتے اور حضور کا دیدار کرتے. اس طرح سے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو قحط سالی کا عالم تھا. ایک زمانے سے وہاں بارش نہیں ہوئی تھی, اس کی وجہ سے خشک سالی ہو گئی تھی. لیکن حضرات محترم دیکھیے جب حضور کا وہاں نزول ہوا تو اللہ نے رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائی. اور ایک قحط سالی تھی, سوکھا تھا, بارش ہونے کے بعد خوب بارش ہوئی, پھر ہریالی ہو گئی, چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی. جو درخت بے جان ہو چکے تھے, جن کے اندر سے جان کھنچ چکی تھی, وہی درخت ہرے بھرے لہرا رہے ہیں. جانور جو ہے بھوک کی وجہ سے نڈھال تھے, ان کے اندر گوشت بالکل ختم ہو چکا تھا, کھا کر ہڈی معلوم ہوتے تھے جانور. لیکن اب بارش کی وجہ سے ہریالی پھول گئی ہے, ہریالی جو ہے جم گئی ہے, اور اس وجہ سے تمام جانور جو ہے چارہ چرتے ہیں, خوب فربا ہو گئے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ کا حال یہ ہے کہ ان کی بکری بھی دودھ سے بالکل خالی تھی, لیکن ان کے تھنوں میں بھی خوب دودھ ہے. اب جب دودھ نکالتے دوسری عورتوں نے دیکھا تو کہا اے حلیمہ سعدیہ تمہاری بکری بڑا دودھ دے رہے ہیں. تو کہا نہیں ہماری بکری نہیں, بلکہ بنو سعد قلب کی جتنی بھی بکریاں ہیں, اس قبیلے کی جتنی بھی بکریاں ہیں, سارے بکریوں کے اندر خوب دودھ ہے. اور یہی منظر ہوا کہ جن نے اپنی بکریوں کو دوہنا شروع کیا, خوب دودھ نکلا. یہ حضور کی آمد کی برکت ہے حضرات محترم. اس کے بعد اور معجزات بنتے گئے, اور آگے سنیے حضور کی تعریف بیان کرتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ. تو اس کے بعد جو ہے جو بھی بچہ بیمار ہو جاتا, جو بھی جانور بیمار ہو جاتا, وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آتا, حضور اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے, شفا یاب ہو جاتا. نابینا آتا, ہاتھ رکھ دیتے, شفا یاب ہو جاتا. جس بیماری میں آتا جو ہے ہاتھ حضور رکھ دیتے, وہ شفا یاب ہو جاتا. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کا یہ منظر دیکھا. اچھا آئے دن جو ہے لوگ کٹورا لیے جو ہے گھر کے سامنے کھڑے رہتے, تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ذہن میں ایک بات آئی, ایسے میں کہاں تک یہ جو ہے کٹوروں میں حضور کا مبارک پیر داخل کروں گی, اور کب تک یہ پانی پلاؤں گی. اس وجہ سے انہوں نے ایک حوض کھود دیا, حوض میں پانی بھر دیا, اور جو ہے حضور کا مبارک قدم اس میں داخل کر دیا. اور داخل کرنے کے بعد کہا اے عورتوں سنو, جسے بھی محمد کا دھوبن لے کر کے جانا ہے وہ اس حوض سے لے کر کے جائے اور اپنے بیماروں کو شفا یاب فرمائے. تو ایسا ہی ہوا, جو بھی بیمار ہوتا حضور کے مبارک قدموں سے لگا ہوا پانی ایسا آب حیات شفا یاب ہو گیا کہ جو جس بیماری میں بھی تھا وہ شفا یاب ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ حضور کے قدموں کے جو ہے دھوبن کی برکت یہ ہے, تو میرے حضور کی مبارک ذات کی برکت کیا ہوگی. اور حضرات محترم اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سلسلہ یہ بڑھتا گیا. اللہ رب العزت جل مجدہ کا ایسا کرم ہوا. حضرت شیمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور باقاعدہ تفسیر کی کتابوں میں حضور کی رضائی بہن تھی شیمہ, حضور سے بڑی محبت کرتی تھی. آپ نے گاؤں دیہات میں دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے مائیں جب کھانا بنانے کے لیے مصروف ہو جاتی تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بہنوں کو اٹھا کر کے ایک چوپال میں لاتی اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی کہ میرا بھائی سب سے خوبصورت ہے, میرا بھائی سب سے حسین ہے. آپ بھی ماشاءاللہ گاؤں کے ہوں گے, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بہن جو ہے اپنے دوسری بہن سے پڑوسی سے کہتے میرا بھائی بہت اچھا. لیکن جب حضرت شیمہ حضور کو اٹھا کے لاتی اور بڑا ناز و نخرے میں چلتی, ان کی چلنے کی شان کیا ہوگی, جب کہتی میرا بھائی سب سے حسین و جمیل ہے, تو تمام قبیلے کی بچی جو تھی اس بات سے جو ہے اس بات کو اقرار کرتی کہ واقعی شیمہ تمہارا بھائی بڑا حسین و جمیل ہے. حضرت شیمہ کا واقعہ ہے کہ حضور ان کو لے جانے کے لیے منع کرتے تھے, باہر کہیں دھوپ نہ لگ جائے, اور حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے زیادہ خیال کرتی تھی کہ کہیں حضور کو جو ہے یہ لے کر کے نہ جائیں. اب حضرت شیمہ بچپن کا زمانہ ہے, اب حضور چھوٹے سے ہیں, حضرت
शीमा हुजूर को उठा करके लेके जाती हैं, लेने धूप में लेकर के जाती हैं। अब हलीमा सादिया जब देखती हैं कि मोहम्मद आ गए तो बेचैन और बेकरार हो जाती हैं। तो हज़रत शीमा को दौड़ के देखती हैं, क्या देखती हैं कि धूप है, भरी भर की धूप है बिल्कुल, और उधर से हज़रत शीमा आती हैं और हुजूर गोद में हैं। तो हज़रत शीमा को हज़रत हलीमा सादिया डांटती हैं, तुम मोहम्मद को धूप में क्यों लेकर गई? अब हज़रत शीमा क्या कहती हैं, अम्मी जान इनको धूप नहीं लगती है। अरे बेटा कैसी बात करती हो? नहीं अम्मी जान इनको धूप नहीं सताती है, मैंने देखा है कि जब मैं धूप में गई थी तो बादल का एक टुकड़ा इनके ऊपर साया किए हुए था, जहाँ मैं रुक जाती वहाँ बादल का साया रुक जाता, जब मैं चलती तो बादल का साया चलने लगता। अल्लाह अकबर। हुजूर के बचपन का आलम यह है कि अल्लाह ने बादलों को हुजूर के लिए साया बना दिया था। ये मेरे हुजूर की शान है। अल्लाह का करोड़ों मर्तबा शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया, ऐसा महबूब अता फरमाया जो तमाम महबूबों का महबूब हो। हज़रात मोहतरम, बाकायदा हज़रत हलीमा सादिया कसम उठा के कहती हैं, तुम कसम खा के कहो क्या ये बात सच है? कहा अम्मी जान कसम उठा के ये बात कहती हूँ मैं कि वाकई हुजूर मोहम्मद जहाँ भी जिस जगह में ले गई ये बादल का टुकड़ा हुजूर पर साया करता था। अल्लाह अकबर। ये बचपन का आलम है। एक मर्तबा हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया, अम्मी जान तो ये तो बताओ हमारे भाई ये कहाँ जाते हैं? तो कहा बेटा तुम्हारे भाई बकरियों को ये जंगल में चराने जाते हैं। तो ज़िद की अम्मी जान मैं भी जाना चाहता हूँ। तो हज़रत हलीमा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तुम जा सकते हो। अल्लाह अकबर। अब जरा हुजूर का मुलाहिज़ा, कुछ लोग मुखालिफ यहाँ हुजूर की जो है कमतरी बयान करते हैं कि हुजूर तो अपने हाथ से अपना कपड़ा सिल लिया करते थे, अपने हाथ से। अरे कपड़े सिलने का अंदाज निराला तो देखो, अपने हाथ से जो है बकरियां जो है हुजूर चराया करते थे, लेकिन बकरियों का चराना और उन बकरियों का हुजूर की अजमत का मुलाहिज़ा तो फरमाओ। तुम यूँ तो हुजूर की शान को घटाने की कोशिश करते हो, लेकिन हुजूर की अजमत को तो बयान करो। और क्या कहते हैं उसके बाद हज़रत हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अरे हलीमा हुजूर अम्मी जान हम भी जाना चाहते हैं भाई के साथ। अब दूसरे दिन हुजूर तैयार होते हैं जंगल में जाने के लिए। अब बकरियां आगे आगे, हुजूर पीछे पीछे। अब बकरियां आगे नहीं चलती हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा सादिया परेशान है, आखिर बात क्या है? अब्दुल्ला भी परेशान है, शीमा भी परेशान है। तो हज़रत हलीमा के सादिया के जहन में बात आई, अरे अब्दुल्ला सुनो, जब तक ये बकरियां आगे रहेंगी, जब तक ये हुजूर पीछे रहेंगे और बकरियां आगे रहेंगी नहीं चलेंगी, जब तक तुम मोहम्मद को आगे नहीं करोगे उस वक्त तक बकरियां नहीं चलेंगी। अरे बकरियां भी जानती हैं ये इमामुल अंबिया है, आखिरी नबी हैं, अल्लाह के हबीब हैं, इनका अदब करना हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। जब हुजूर आगे होते हैं तो बकरियां फिर पीछे पीछे बड़ी अदब के दायरे में चलती हैं, जंगल में जाते हैं। हुजूर एक टीले पर बैठ जाते हैं, जितने भी चरिंद परिंद हैं सारे चरिंद परिंद आकर हुजूर की ज़ियारत करते हैं। शेर भी हुजूर की ज़ियारत करने आता है। एक शेर दूसरे शेरों से कहता है, चलो चलो इमामुल अंबिया हैं, रहमतुल लिल आलमीन, इनकी ज़ियारत कर लो। अरे गारे सौर के अंदर एक सांप था जो 800 साल से हुजूर के दीदार का मुंतजिर था। तो वो जानवर कैसे हुजूर का दीदार के लिए ना निकलते कि हुजूर टीले पर जलवागर हैं और जानवर वहाँ अपने बिलों में छुपे रहें, कीड़े मकोड़े अपने बिलों में छुपे रहें। अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या हुआ? एक जानवर, एक शेर दूसरे शेर को खुशखबरी देता है, चलो चलो इमामुल अंबिया हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, तोहा यासीन आए हैं, अल्लाह के हबीब हैं, इनकी ज़ियारत कर लो। तमाम जानवर अपने अपने टीलों से दूर दूर से नज़ारा करते हैं। ये माहौल चलता रहा। अल्लाह अकबर। एक दिन क्या होता है, अब्दुल्ला अम्मा से बयान करते हैं, अम्मी जान बड़ा गज़ब हो गया, मोहम्मद की मैंने अजीब निराली शान देखी। बेटा क्या देखा है? अम्मी जान हमने देखा है जब ये किसी दरख्त के पास से गुजरते, सूखे दरख्त के पास तो हरा भरा हो जाता, और अगर किसी दरख्त के पास बैठते उसका साया दूसरी जानिब झुका हुआ होता, लेकिन जैसे ही मोहम्मद बैठते उसका साया दरख्त का आपकी जानिब झुक जाता और साया करने लगता। अम्मी जान इनकी बड़ी शान है। मैंने और देखा कि जब ये रेतीली ज़मीन पर गुजरते तो कदमों के निशान नहीं पड़ते, लेकिन जब सख्त पत्थर पर गुजरते तो कदमों के निशान पड़ जाते। पत्थर भी जानता था कि ये अल्लाह के नबी हैं, अगर इनके लिए मैंने सीने को खोल दिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे हो सकता है जन्नत में भेज दे। चूँकि कुरान पाक की आयत मुबारक है, क़ू अनफुसकुम अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, बचाओ अपने आप को और
इंसान को, उस पत्थर को जिस आग के ईंधन जो है जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर हैं, चूँकि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जो है पत्थरों को भी जहन्नम की वादी में ढकेल देगा, इंसानों को भी ढकेल देगा। एक पत्थर ऐसा था जो हुजूर को देख के रोता था, तो हुजूर ने कहा क्यों रो रहा है? या रसूलल्लाह आखिरत के खौफ से रो रहा हूँ। हुजूर ने दुआ की, जन्नत में चला गया। हुजूर ने उसके लिए दुआ की, वो जन्नती हो गया। एक फिर दोबारा हुजूर गुजरे, कहा अब क्यों रोता है? कहा या रसूलल्लाह खुशी में रहता हूँ कि आपके सदके में अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं, अम्मी जान हमारे भाई मोहम्मद की बड़ी शान है, जब सख्त पत्थर पर से गुजरते तो कदमों के निशान आपके पड़ जाते, लेकिन जब पथरीली जब रेत वाली ज़मीन पर गुजरते तो नहीं। यह अम्मी जान मोहम्मद की बड़ी शान है। तो कहा बेटा किसी से जिक्र मत करना, हमने और भी बहुत सारी बातें देखी हैं। उसके बाद हज़रात मोहतरम क्या होता है, हुजूर 3 दिन के लिए आपको बुखार आ गया, आप 3 दिन तक जंगल की ओर नहीं गए, तो इस वजह से तमाम जानवर परेशान हो गए। अब अब्दुल्ला बकरियां लेकर के गए। अब क्या हुआ कि अब्दुल्ला बकरियां चरा रहे थे, इतने में एक शेर, बड़ा बूढ़ा शेर जो है बकरी को उठा करके लेके जाता है। अब अब्दुल्ला दौड़ते हुए अम्मी की बारगाह में आते हैं। अम्मी जान गज़ब हो गया, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी थी वो शेर, जंगल का शेर उठा करके ले गया। जब हज़रत हलीमा सादी ने बात सुनी तो आंखें अश्कबार हो गई, पुरनम हो गई, रोते हुए कहा बेटा ये तो बड़ा गज़ब हो गया, जब से ये मोहम्मद बच्चा आया है, जब से मोहम्मद आए हैं, तो जब से ना किसी शेर ने किसी बकरी को उठाया है, ना किसी जानवर ने किसी दूसरे पर जुल्म किया है, लेकिन आज क्या हो गया, जरूर कोई राज की बात है। हुजूर को जब इस बात का इल्म हुआ, हुजूर ने कहा अम्मी जान क्या बात है? कहा बेटा जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी थी उसको जानवर उठा के ले गया, इसका गम नहीं है, लेकिन जब से मोहम्मद तुम आए हो उसकी बरकत ये है कि कोई जानवर किसी जानवर को तकलीफ नहीं देता। बकरी और शेर आपस में चढ़ा करते थे, अल्लाह अकबर, एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन हुजूर का ऐसा मुबारक ज़माना था कि बकरी और शेर दोनों दोस्त हो चुके थे, अल्लाह अकबर, आपस में चरते थे। लेकिन आज क्या हो गया बेटा, आज जो है शेर बकरी को लेकर के गया, तो हुजूर ने कहा अम्मी जान चलो। अब्दुल्ला से कहा मुझे बताओ किस जानिब से शेर ले गया। जब हुजूर जंगल में पहुंचे और एक टीले पर खड़े हुए तो भाई ने कहा अब्दुल्ला ने इस जानिब से शेर आया। हुजूर ने कहा अरबी जुबान में या अबल हारिस, या अबल हारिस, ए शेर, ए शेर। जब इतना ऐलान किया 2-3 मरतबा जंगल के जितने भी चरिंद परिंद थे, जितने भी शेर थे, सारे के सारे उमट कर हुजूर की बारगाह में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। जानवर भी हुजूर की अज़मत को समझ रहे हैं, जानवर भी हुजूर की बोली को समझ रहे हैं। जब कहा या अबल हारिस, ए शेर तुम निकल के आओ, तुम मेरी बकरी को क्यों लेकर के गए? अब जो है तमाम शेर, तमाम जानवर आ जाते हैं। आने के बाद हुजूर का दीदार करते हैं और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद एक जंगल का बूढ़ा शेर जो है लेकर के बकरी आता है, कान पकड़ के झंझोड़ता हुआ लेकर के आता है और हुजूर के आगे कर देता है और हुजूर से जो है फिर बातें करता है। शेर हुजूर से बातें करता, हुजूर शेर से पूछते हैं कि तू ए शेर तुम मेरी बकरी को उठा के क्यों ले गया? तो शेर करता है या रसूल अल्लाह, आप 3 दिन से जंगल की तरफ नहीं आए, हम आपके दीदार के लिए मुंतज़िर थे, लेकिन आपका दीदार नहीं हुआ, हम बेचैन हो गए। जब से आपका दीदार किया है तो अल्लाह ने मेरे ऊपर बरकत रहमतें नाजिल की हैं और मैं खुश हूँ, हमारे तमाम जानवर जितने भी सब खुश हैं। आपकी आमद से हमें घास फूस चारा भी मिलता है। 3 दिन हो गए हैं आपकी ज़ियारत नहीं हुई, इस वजह से हम तमाम शेरों ने, जारों ने मशवरा किया कि हुजूर की बकरी को, हज़रत हलीमा की बकरी को उठा लिया जाए, हुजूर खुद छुड़ाने आ जाएंगे और दीदार इसी नसीब से हो जाएगा। या रसूलल्लाह और कोई मकसद नहीं है, आपकी ज़ियारत का मकसद था या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं हमें तो नहीं मालूम कि हुजूर क्या बात कर रहे हैं, हुजूर जो बोलते थे वो तो मैं जानती थी, लेकिन शेर क्या कह रहा वो नहीं समझती। मैंने दामन पकड़ के कहा ए बेटे मोहम्मद ये तो बताओ ये जानवर तुमसे क्या बात कर रहे थे? तो हुजूर सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हलीमा सादिया सुनो, ए अम्मी जान सुनो, शेर कह रहे थे 3 दिन से हुजूर आप जंगल की तरफ नहीं आए, आपका दीदार नहीं हुआ, इसलिए खाना पीना उठ गया। अब जब आपका दीदार हो गया तो दिल को सुकून मिल गया। अल्लाह अकबर। ये जानवर भी समझ रहे हुजूर की अज़मत को। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम और आगे चलिए और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। हुजूर की विलादत के बाद यानी जब ऐलान नबूवत के बाद
का वाक़या है। हज़रात मोहतरम हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ला रहे तो एक शिकारी ने हिरनी को शिकार कर लिया, हिरन को शिकार कर लिया। तो अब हुज़ूर जब तशरीफ़ ला रहे थे तो हिरन ने देखा जब हुज़ूर को, मुलाहिज़ा फरमाइए हज़रात मोहतरम, तो हिरन रोते हुए हुजूर की बारगाह में शिकायत करती है, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिदा का अबी व उम्मी, या रसूलुल्लाह इस शिकारी ने मुझे शिकार कर लिया है, या रसूलुल्लाह मैं भूख की वजह से जंगल की ओर आई थी लेकिन इस शिकारी ने मुझे शिकार कर लिया था, या रसूलुल्लाह मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, भूख की वजह से बिलक रहे होंगे, या रसूलुल्लाह मुझे इस शिकारी से छुड़ा दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला करके फिर इसकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगी, या रसूलुल्लाह मुझे इससे रिहाई दिलवा दीजिए। अल्लाह के महबूब शिकारी से कहते हैं, ए शिकारी तू इस हिरन को छोड़ दे इसलिए कि इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अब वो शिकारी कहता है, आप कैसी बात कर रहे हो कि अगर शिकार ये छूट गया तो फिर ये शिकार छूट गया तो फिर ये दोबारा कभी आएगा? तो हुजूर ने कहा, हाँ ये मेरा शिकार है, इसने मुझसे वादा लिया है। अब वो शिकारी जो है हिरन को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो जंगल की ओर जाती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, पिलाने के बाद जुहूं चलने के लिए करती है। बच्चे दोनों टांगों से लिपट जाते हैं और ज़ुबान हाल से कहते हैं, अम्मी जान मुझे कहाँ छोड़ करके जा रही हो? वो हिरन जब बच्चे कहते तो हिरन कहती है, ए बेटा मुझे शिकारी ने शिकार कर लिया है और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा लिया है कि अपने बच्चों को दूध पिला के तुम्हारी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह पर इतना सुनना था, बच्चे भी साथ में हो जाते हैं। अब ये तीनों हजरात, ये तीनों, एक हिरन और 2 बच्चे चले आ रहे हैं। हुजूर की निगाह जब दूर से पड़ी तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए शिकारी देख तेरा शिकार आ रहा है। अल्लाह अकबर, ये अज़मत देख के अल्लाह अकबर वो ईमान कबूल कर लेता है, कदमों में गिर पड़ता है, कहता है या रसूलल्लाह पहले मुझे अपना शिकार कर लीजिए, बाद में हिरन को शिकार किया जाएगा, और कलमे तैयबा पढ़ता है। इस तरह से हुजूर ने जो है हिरन को रिहाई दिलवाई और उसके चुंगल से आज़ाद करवाया। हुजूर ने किसकी फरियाद नहीं सुनी? आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि हुजूर हमारी क्या फरियाद सुनेंगे। नहीं हजरात मोहतरम, हुजूर का मकाम बहुत बुलंद है। आपने जानवरों की भी फरियाद सुनी है। एक शख्स नबी की बारगाह में आता है, उसका ऊँट दीवाना हो गया, पागल हो गया। उसने शिकायत करी कि मेरा ऊँट पागल हो गया, हुजूर चलिए ज़रा उसके ऊपर दम कर दीजिए, या रसूलल्लाह वो ऊँट सही हो जाए। जब हुजूर जो है बाग में पहुँचने के बाद जब उसके आगे करीब गए तो उसने ऊँट के मालिक ने कहा, हुजूर करीब मत जाइए, दीवाना हो गया, आपको नुकसान पहुँचाएगा। सरकार जब करीब गए उसने जो है आपके मुबारक कदमों में अपना मुँह रख दिया, यानी सजदा किया, मुँह रख दिया, और उसके बाद कहा, या रसूलल्लाह मेरा मालिक मुझसे काम ज़्यादा लेता है, चारा कम देता है, या रसूलल्लाह इसकी वजह से मैं कमज़ोर और नातवाम जो है कमज़ोर हो गया हूँ, या रसूलल्लाह। तो हुजूर ने कहा, ए ऊँट के मालिक तो इसको चारा कम देता है, काम ज़्यादा लेता है, इसकी वजह से कमज़ोर हो गया। उस वक्त हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि अपने जानवरों को 70 मरतबा चारा और पानी दिया करो। जिसकी फरियाद जो है हुजूर जानवरों की भी फरियाद सुने, उस आका अलैहिस्सलाम का मकाम क्या होगा। हज़रात मोहतरम, बाकायदा परिंदों ने हुजूर की बारगाह में शिकायत की, या रसूलल्लाह आपके सहाबा हैं, इनके बच्चे मेरे घोंसलों को बर्बाद कर देते हैं, या रसूलल्लाह मैं तिनका चुन चुन के लाती हूँ। परिंदे कहते हैं मैं लाता हूँ चुन चुन के, एक एक तिनके से मैं घोंसला तैयार करता हूँ। उसके बाद आपके सहाबी की जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो हमारे घोंसले को जो है उजाड़ देते हैं, मेरे घर को उजाड़ देते हैं। हुजूर ने तमाम सहाबा को जमा किया, जमा करने के बाद कहा, ए सुनो तुम जो हो परिंदों को, ए सहाबी रसूल सुनो अपने बच्चों को इस बात की तलकीन को, इसलिए कि परिंदों ने हमसे शिकायत की है जो है उनके घोंसलों को ना बर्बाद किया जाए, ना तोड़ा जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम परिंदों को भी बोलियाँ समझते हैं। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, सहाबी रसूल ने जो है एक चिड़िया जो है छोटा बच्चा उठा लिया, बाकायदा हुजूर की बारगाह में उस चिड़िया ने शिकायत की, या रसूलल्लाह आपके सहाबी रसूल ने हमारे बच्चे को उठा लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ऐसा महबूब अता फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 70 लाख ज़ुबानें जानते थे, जिसमें दुनिया के अंदर 30,000 ज़ुबानें बोली जाती हैं। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि हुजूर ने ज़ुबान देवबंद से सीखी थी, उर्दू ज़ुबान देवबंद से सीखी थी। आप ज़रा गौर फरमाओ, जिसके बारे में कुरान कहे वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ऐ हबीब जो तुम कुछ नहीं जानते थे लेकिन अल्लाह का यहाँ पर करम हुआ कि हर चीज़ का इल्म अता फरमा दिया। अब ये बताओ कुरान की बात मानोगे या इनकी बात मानोगे? कुरान कहता है हबीब
तुम्हारे पास कुछ इल्म नहीं था, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से तुम्हें हर चीज़ का इल्म अता फरमा दिया। जब अल्लाह ने कहा हर चीज़ का इल्म अता फरमा दिया, तो अब कोई ज़ुबान बाकी रही। हालांकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 70 लाख ज़ुबानें जानते थे, लेकिन हुजूर को तमाम कायनात का इल्म दे दिया। जब तक यहाँ तक कि क़यामत में जो कुछ होने वाला है और जो कुछ आज क़यामत तक होने वाला है और जो हो चुका, सारी चीज़ों का हुजूर को इसका इल्म था। कुछ लोग कह दिया करते हुजूर को इल्म गैब नहीं है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने हमें ऐसा नबी अता फरमाया जो तमाम नबियों का नबी हो। 12 नबी इस बात को मुंतज़िर रहे, या अल्लाह उस नबी की उम्मत में भेज दे। वो शर्फ उनको ना मिला जो शर्फ हमको मिला। हमें चाहिए कि हुजूर का जिक्र करें, हुजूर का सलात व सलाम पढ़ें। सुबह के वक्त देखो कितने मुबारक दिन थे कि हर मस्जिद से सलात व सलाम की आवाज़ें बुलंद हुआ करती थी। आज जने क्या चीज़ हो गई, जब हुजूर की मिलाद की बात आती है तो तरह तरह के खुराफात बातें करते हैं। हमारे बच्चों के जब हम उनको बच्चों को नाते पाक या सलात व सलाम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे, तो हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि हम किसकी बारगाह में सलाम पढ़ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, वही दौर काश के लौट के आ जाए तो हमारी आपकी मेराज हो जाए, हम आप जो है हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह जो अब से 100, 200, 300 साल पहले माहौल था वही माहौल को कायम कर दे। हर घर से सलात व सलाम की आवाज़ आए। कुरान खुद ये आयत मुबारका ऊपर सामने लिखी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर यानी मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वाले, तुम भी खूब सलाम पढ़ो अपने नबी पर, तुम भी खूब दुरूद पढ़ो, खूब सलाम भेजो। इंशाअल्लाह जब ये हमारा अमल होगा तो दुनिया आखिरत दोनों समझ जाएगी। अल्लाह की बात